Hello and welcome you all. This is Neha, and today we're going to discuss the Vedic Age, the third chapter of the series of ancient history. Oh, so far we have discussed two chapters called the Stone Age and Indus Valley Civilization, and today we're going to discuss the Vedic Age. So the first question of the chapter is here. The term Aryan denotes what? An ethnic group, a nomadic people, a speech group और a superior race. तो आर्यन का मतलब है नोबल मैन या फिर सुपीरियर मैन या फिर सुपीरियर रेस. तो ये ऑप्शन डी विल बी आंसर. आर्यन इज अ टर्म मीनिंग नोबल which was used as a self designation by Indo-Iranian people. In classic Sanskrit, the word Aryan means a noble man. The word was used by the people of the Vedic period in India as an ethnic label for themselves as well as to refer noble class. Next, meaning of the term Arya in classical Sanskrit is a noble man. अभी ऊपर देखा है हमने. Which one of the following is oldest Veda? तो oldest Veda is Rig Veda. Trai is a name for three Vedas. Question number 4 we are discussing. Trai is a name for three Vedas, Dharma, Sangha and Buddha, three gods in Hindu pantheon or the three seasons. तो वेद त्रय तीन वेद को डिनोट करते हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड सामवेदा. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन. इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्णा इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो पहली बार ऋग्वेदा में ही मिला था. द वर्णा हैव बीन नोन फ्रॉम द ऋग्वेदा सिंस अ हाइम इन द ऋग्वेदा portrays the Brahmin, the Kshatriya, the Vaishya and the Sudras. Mythologically, it is said to be that all three Varnas are the creation from the mouth, arms, thighs and the feet of a primeval person, that is Purusha or Brahma. Although the literal meaning of the word Varna is color or the class in Sanskrit. Next question. The Purusha Sukta is related to Varna system is originally found in which Veda? So Atharva Veda, Samveda, ऋग वेदा और मनुस्मृति. तो ये हमें मिला है पुरुष सुक्ता जो कि वर्ण सिस्टम से रिलेटेड है. ये मिला है ऋग्वेदा से ही. नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन. इसमें मैचिंग करना है. अथर्ववेदा किससे रिलेटेड है? गॉड ग्रेस, सेक्रीफाइस प्रोसेस, मेडिसिन से रिलेटेड है या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड है. तो इधर आंसर दिया हुआ है, यही देख लेते हैं. अथर्ववेदा इज रिलेटेड टू मेडिसिन, ऋग्वेदा इज रिलेटेड टू गॉड ग्रेस जहाँ पे हमें हाइम्स मिलते हैं बहुत सारे प्रेयर्स, यजुर्वेदा इज रिलेटेड टू सेक्रीफिशियल प्रोसेसेस एंड सामवेदा इज म्यूजिक. नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी मैचिंग करना है. तो ऋग्वेदा इज रिलेटेड टू हाइम्स एंड प्रेयर्स, यजुर्वेदा इज रिलेटेड टू रिचुअल्स, हाइम्स एंड रिचुअल्स. तो बी का हो जाएगा सेकेंड. सामवेदा इज रिलेटेड टू म्यूजिकल हाइम्स एंड अथर्ववेदा एट लास्ट इज चार्म्स एंड स्पेल्स जिसमें तांत्रिक चीज़ें भी देखने को मिलती हैं अथर्ववेदा में. तो ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ 1028 hymns and 10,552 mantras. Yajurveda contains the description of stotras and rituals, whereas Samveda consists of many hymns which are taken from Rig Veda and are indeed lyrical and melodious. And the Atharva Veda contains a lot of knowledge of the physical world and spirituality. तो फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिटी के बारे में अथर्व वेदा में है चार्म्स एंड स्पेल. नाइन्थ, इन ऋग वेदा देर आर mantras, so they have not given any correct option. ऋग वेदा में 10,552 mantras है. नेक्स्ट, 10th क्वेश्चन. द ऋग वेदा इज द collection of hymns
or collection of stories, collection of words, collection text of war. तो ऋग्वेदा क्या है? ऋग्वेदा is a collection of hymns and prayers. The Rigveda is an ancient collection of Vedic Sanskrit hymns. It consists of thousands of such hymns of several seers, each hymn averaging around 10 verses. It is one of the four canonical sacred texts. ये श्रुति हैं जो सुने जाते हैं. ये रिटन अवेलेबल नहीं थे शुरुआत में. नेक्स्ट देखते हैं. इसमें भी मैचिंग करना है. ऋग्वेदा और ये कौन से पद से रिलेटेड है या फिर इन वेदास में किसका मेंशन है. तो डायरेक्ट ये देखते हैं आंसर. ऋग्वेदा ऐत्रेय. सामवेदा रिलेटेड है पंचविशा से. अथर्ववेदा रिलेटेड टू गोपथा एंड यजुर्वेदा इज रिलेटेड टू शतपथा. Which one of the following ब्राह्मणा टेक्स्ट belong to the ऋग्वेदा. तो इन चारों में से कौन सा ऋग्वेदा से रिलेटेड है. तो ऐत्रेय ब्राह्मणा, गोपथ ब्राह्मणा, शतपथ ब्राह्मणा, तैत्रेय ब्राह्मणा. तो ऐत्रेय ब्राह्मणा इज रिलेटेड टू ऋग्वेदा. MPPCS में पूछा गया ये. गोपथा ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद अथर्ववेदा. तो गोपथा ब्राह्मणा अथर्ववेदा से एसोसिएटेड है. सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका 13th क्वेश्चन का. गोपथ ब्राह्मणा इज द ओनली ब्राह्मणा, अ genre of the prose text describing the Vedic rituals associated with the Atharva Veda. The text is associated with both the Shaunaka and the Pipalada recension of the Atharva Veda. Next, which of the following is a Samhita of Shukla Yajurveda? तो ऑप्शंस आर वजसनामी, मैत्रेयानी, तैत्रीय और कथक. तो इसका आंसर है वजसनामी. देर आर 2 branches of Yajurveda, Shukla Yajurveda and Krishna Yajurveda. Next, which mandala of Rigveda is completely dedicated to Soma? So 9th mandal is dedicated to Soma. Soma is the god. Rigveda is oldest Veda. It comprises of 10 mandals. The 9th mandal of Rigveda comprises of 114 mantras dedicated to Soma. 16th question. The 9th mandal of the Rigveda is devoted wholly to Indra and his elephant, Urvashi and the heaven gods related to plants and drugs, Soma, the god who is named after the drink. So obviously option D would be answer. Next, rites and rituals related to the yajanas and are mentioned in which Veda? तो rites and rituals जो कि यजना से related है. So basically yajna means यज्ञ. सो रिचुअल्स एंड राइट्स किस वेदा में है? तो यजुर्वेदा में है. यजुर्वेदा इन संस्कृत मीन्स विजडम ऑफ सेक्रीफिशियल फॉर्मूलाज. तो यजना के टाइम पे क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने चाहिए, किस तरह रिचुअल्स फॉलो करना चाहिए, क्या राइट्स होते हैं, क्या डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यजुर्वेदा में मेंशन है. सो दिस वेदा कंपाइल्ड अ सेंचुरी और 2 आफ्टर द ऋग्वेदा. तो ऋग्वेदा के आने के 1 से 2 सेंचुरी बाद यजुर्वेदा कंपाइल किया गया था. तो इट कंटेन्स प्रोज एंड वर्स फॉर्मूला दैट वर टू बी प्रोनाउंस्ड बाय द प्रीस्ट्स परफॉर्मिंग द मैनुअल पार्ट ऑफ द सैक्रिफाइस. इट डिस्क्राइब्स इन prose about the procedural details of performing different rituals and yajanas using the hymns of the Rig Veda. तो जो ये ऋग वेदा में हाइम्स एंड प्रेयर्स दी गई है उन्हीं को किस तरह फॉलो किया जाए, ये है यजुर्वेदा में. नेक्स्ट देखते हैं 18th. विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स द अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स. तो ये अथर्ववेदा है,
Earliest description of charms and spells can be found in Atharva Veda. Next, the compilation of which among the following is based upon the Rig Veda? तो जो आंसर है इसका ऑप्शन बी साम वेदा। तो इसका कंपाइलेशन is based on Rig Veda. Explanation: the Samveda is the shortest among all the four Vedas. It is closely connected with the Rig Veda. It has taken many verses from the Rig Veda. The Samveda is compiled inclusively for ritual applications, and all of its verses are meant to be chanted in ceremonies. Samveda Samhita consists of a total of 1875 verses. Amongst these, except 75 or 99 verses, all of them are compiled in ऋग वेदा। तो सामवेदा का बहुत बड़ा पार्ट ऋग वेदा से ही लिया गया है। नेक्स्ट, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम। तो कहाँ से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ आयरन मिला है? तो ये मिला है अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा इज़ अ prehistoric and historic excavated archaeological site on the bank of Kali River, a tributary of Ganga. तो काली रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। This site was first identified by Sir Alexander Cunningham in 1862, but excavated by R.C. Gore in 1962. The earliest evidence of iron used in the region dates back to 1150 BC. Next, 21st, Upanishads are books on philosophy. ऑप्शंस थे इसमें रिलीजन, योगा, लॉ और फिलोसफी। तो ये उपनिषद्स फिलोसफिकल बुक्स हैं। द उपनिषद literature is not a religious scripture but represented a philosophy for all times and for all. The philosophy of Upanishad does not oppose any school of thought, religion, or interpretation of the scriptures, but its method for explaining its concept is unique. Upanishad means pupils sit near the teacher to learn from him about the secret doctrine. तो उपनिषद किसी भी स्क्रिप्चर का, किसी भी लिटरेचर का, किसी भी रिलीजन का अपोज नहीं करते हैं। उपनिषद का मतलब ही है कि pupils sit near teacher to learn from him about the secret doctrine. कुछ doctrines को सीखने के लिए टीचर के पास बैठना मतलब उपनिषद है। तो ये फिलॉसफी बताता है किस तरह लाइफस्टाइल होना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें। नेक्स्ट, द मेन थीम ऑफ उपनिषद इज अ फिलॉसफी। Next, 23rd, which one of the following Vedic literature talks about the salvation? तो salvation के बारे में उपनिषद बात करते हैं। So salvation का मतलब होता है मोक्ष। So the word salvation और मोक्षा is not used in Vedas. तो वेदा में salvation या फिर मोक्ष को नहीं यूज़ किया गया है। It was firstly discussed in Upanishads. Moksha means liberation. The continuous cycle of life and death is not the actual aim of the human soul. According to the Upanishads, the core of our self is not the body or the mind, but the Atma, the soul. तो salvation या फिर मोक्ष का मतलब ही है कि जो डेथ एंड लाइफ वाली साइकिल है इससे अलग हो जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन्ड इन बृहदरण्यका उपनिषद, छंदोग्योपनिषद, कठोपनिषद और केनोपनिषद। तो जो डायलॉग्स हैं नचिकेता और यमा के बीच के वो कठोपनिषद में है। कठोपनिषद इज द स्टोरी ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन यमा, यम है लॉर्ड ऑफ डेथ, एंड नचिकेता द यंग 12 ईयर ओल्ड बॉय। तो नचिकेता एक 12 ईयर ओल्ड बॉय है
और यम जो है ये लॉर्ड ऑफ डेथ है। तो नचिकेता हु लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ द मीनिंग ऑफ डेथ एंड व्हाट बियॉन्ड द डेथ, तो ये ढूंढने के लिए निकले थे। दिस forms the subject matter of one of the Upanishad called कथा उपनिषद और कथोपनिषद। तो जो इनसे बातचीत है नचिकेता की यमा से, इनका कॉन्वर्जेशन कथोपनिषद में है। मीन्स इनका जो कॉन्वर्जेशन है पूरा का पूरा वही कथोपनिषद है। नेक्स्ट, नचिकेता लीजेंड फाइंड्स मेंशन इन, तो कथोपनिषद में। नेक्स्ट, किंग अश्वपति of the Upanishadic period was the ruler of काशी, केकया, पांचाला और विदेहा। तो ये केकया के हैं, अश्वपति। The Upanishads state that some Kshatriya kings who were great scholars and philosophers also imparted knowledge to Brahmins. Some of them were King Janak or Videha, King Pravahanjabali of Panchal, King Aswapati of Kekaya, and King Ajatashatru of Kashi. Aswapati was a Kshatriya king. He was well known for a learned teacher of the age. The Kekaya kingdom was situated on the bank of river Beas, east of Gandhara kingdom. King Aswapati ruled Kekaya when Janak was the king of Videha. तो जो जनक हैं उनके टाइम के ये अश्वपति हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैदिक लिटरेचर, तो वैदिक लिटरेचर का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं सीधे। ईच ऑफ द वेदा इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, तो सारे के सारे वेदास 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देम, Samhita, Brahmana, Aranyaka and Upanishad. Samhita and Brahmana from the Karma Kanda segment of the Veda, while the Aranyaka and Upanishads from the Gyan Kand segment of the Veda. तो दो कांड्स हैं, कर्म कांड एंड ज्ञान कांड। तो कर्म कांड से एसोसिएटेड है ये संहिता एंड ब्राह्मणास, और ज्ञान कांड से रिलेटेड है अरण्यका एंड उपनिषद्स। तो जो अरण्यका और उपनिषद्स हैं ये फोकस जो है फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी पे। नेक्स्ट, द रिवर मेंशन्ड मोस्ट इन अर्ली वैदिक लिटरेचर, तो सबसे ज़्यादा मेंशन किस रिवर का है? तो ये है सिंधु रिवर। Sindhu river was the most important river during the Vedic period. That is why it was mentioned most of the time in the Rig Veda. Sindhu river, due to its economic importance, was called as Hiranyani, and its place of termination referred to as Parvat, which means Arabian Sea. Saraswati river was the most pious river of Rig Vedic Aryans and called Nadi Tama. Next, Vedic river Askini is identified with which one of the following rivers? तो अस्किनी किसको कहते हैं? तो चेनाब का जो एंशियंट नेम है वो अस्किनी है। वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विद अ प्रेजेंट डे रिवर नेम्ड चेनाब, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज चंद्रभागा। तो चंद्रभागा, अस्किनी, चेनाब एक ही है। द रिवर चेनाब ओरिजिनेट फ्रॉम टांडी इन Lahul Spiti, where two rivulets namely Chandra and Bhaga meet to form this river. तो दो छोटे छोटे रिवर्स आके मिलती हैं, रिवुलेट्स, तो चंद्रभागा बनती है रिवर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेंशन्ड इन द ऋग वेदा इंडिकेट्स द रिलेशन ऑफ आर्यंस विद अफगानिस्तान? तो दो ऐसे रिवर जो अफ़गानिस्तान से रिलेशन इस्टेब्लिश करती हैं या बताती हैं, तो ये हैं कुबा एंड क्रमू। तो रिवर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा नेमली कुबा मतलब काबुल and Kramu means Kurram, Gomti, Gomal and Suvastu
were flowing through Afghanistan, which indicates that there were deep relations of Aryans with the country. The Vedic river Kubha was located in, तो ये अफगानिस्तान में मिलती है। ये पीसीएस में पूछा गया है प्री में। अब यहाँ पे कुछ रिवर्स दी गई हैं और उनके मॉडर्न नेम, वैदिक नेम एंड मॉडर्न नेम। तो डायरेक्टली आंसर देखते हैं। कुबा मतलब काबुल, परुशिनी वैदिक नेम है, आज इसको रावी बोलते हैं। सदानीरा गंडक रिवर, शतुद्री है सतलुज रिवर या फिर सतलुज रिवर। 33 In the period of Mahabharat, the name of Mahanadi was, तो महानदी का नाम प्रेजेंट डे में क्या है? तो कावेरी है, ताप्ती है, या फिर महानंदा है, या फिर गंगा है। तो इनमें से कोई नहीं है। द नेम ऑफ महानदी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत वॉज चित्रोत्पाला। In the Bhishma festival of Mahabharata, the Chitrapala river is praised as पुण्यदायिनी एंड सिनवाशिनी, यानी कि पापों को धोने वाली नदी। इंडियन पीपल ड्रैंक द वाटर ऑफ चित्रोपाला। दिस फैक्ट इज प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग वर्सेस ऑफ महाभारता। ये कुछ लिखा है संस्कृत में। द महानदी हैज़ बीन कॉल्ड चित्रोपाला गंगा इन द महोबा कॉपर प्लेट ऑफ सोमेश्वर देव। तो महानदी का नाम चित्रोपाला या फिर चित्रोपाला गंगा है। नॉट कावेरी, नॉट ताप्ती, नॉट महानंदा, नॉट गंगा ओनली। नेक्स्ट 34th, विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम एमर्ज ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। तो पोस्ट वैदिक पीरियड में कौन सा कस्टम एमर्ज हुआ था? सो ऑप्शंस हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये पुरुष हैं जो पोस्ट वैदिक पीरियड में आए थे, दिए गए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र नहीं, ये तो नहीं है, ये तो वैदिक टाइम पे ही डिवीज़न ऑफ वर्णा है। ऑप्शन सी है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और एंड संन्यासा। तो ये भी पोस्ट वैदिक पीरियड में दिया गया है। ऑप्शन डी है इंद्र, सूर्य, रुद्र एंड मारुता। तो ये भी गॉड्स हैं, ये वैदिक एज में, वैदिक पीरियड में मेंशन है। तो इसका ऑप्शन इसीलिए यहाँ पे ए एंड सी लिखा है, क्योंकि ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये पुरुष हैं, और ये जो ऑप्शन सी है ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम एंड वानप्रस्थ एंड देन संन्यास, ये आश्रम है, या फिर कहें कि स्टेजेस ऑफ लाइफ। पहले ब्रह्मचर्य स्टेज रहेगा, फिर गृहस्थ जीवन रहेगा, देन वानप्रस्थ, उसके बाद एट लास्ट संन्यास। तो इसका ऑप्शन ए एंड सी बोथ हो जाएगा। ये वही लिखा है एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम। द धर्मा एंड ऋता डिपिक्ट अ सेंट्रल idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statement. So, dharma was a conception of obligations and the discharge of one's duties to oneself and to others. Next है option B, second. Rita was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all it contained. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। तो धर्म एंड ऋता इन द वैदिक पीरियड अपीयर्स एज अर्ली एज द ऋग्वेदा। तो धर्म एंड ऋता ऋग्वेदा के टाइम का है। यूजुअली धर्म सिग्निफाइज कॉस्मिक ऑर्डिनेंस, ऑफन इन कनेक्शन विद द सेंस ऑफ नेचुरल और डिवाइन लॉ। Rita as such is closely related to universal harmony in which all things in the world have a proper place and function. So the term Rita means an impersonal law, while Dharma characterize those personal actions that engender or maintain the cosmic order. Thus the correct answer is option C. Next. Who among the following Vedic deities was believed to be their priest?
तो इनमें से कौन से गॉड को प्रीस्ट मानते थे आर्यंस? तो बृहस्पति इज ऑल्सो नोन एज देवगुरु, मीन्स टीचर और प्रीस्ट ऑफ गॉड्स, इज द गुरु ऑफ देवास. Next, who among the following was a Brahmavadini who composed some hymns of the Vedas? तो जो ब्रह्मवादिनी है, लोप मुद्रा, मतलब जो वेदास में कॉम्पोजिशन का वर्क अगर फीमेल के द्वारा किया जाता था तो उन फीमेल्स को ब्रह्मवादिनी कहते हैं और उनका नाम है लोप मुद्रा यहाँ पे. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. मैनी हाइम्स ऑफ द ऋग्वेदा composed by women and they were called Brahmavadini. The prominent amongst them were Lopamudra, Vishwavara, Sikta, Nivavari and Ghosha. Lopamudra was the wife of Agastya Rishi. During the Rigvedic period, word Nishka was used for a jewelry, but in later period it was used for the meaning of what? तो arms, farming equipment, script और the coins. तो ऑप्शन डी coins से रिलेटेड है. निष्का, निष्का ऋग्वेदिक नेम है ये निष्का, जो कि पहले माना जाता था कि ज्वेलरी है और बाद में इसको कॉइन माना गया. ड्यूरिंग वैदिक पीरियड द गोल्ड नेकलेस वॉज कॉल्ड निष्का विच लेटर ट्रांसफॉर्म्ड द वे फॉर द गोल्ड कॉइन्स. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड निष्का वॉज एन ornament of course neck during ऋग्वेदिक पीरियड, नॉट लेटर वैदिक पीरियड. तो लेटर वैदिक में तो इसको कॉइन बोला गया है. निष्का इन एंशिएंट इंडिया वॉज नोन एज, तो ये है गोल्ड ornament. 2007 में पूछा है, उससे पहले 2005 में पूछा गया था. नेक्स्ट, बोगस कोई इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, तो बोगस कोई क्या है? तो ये एक इंस्क्रिप्शन है. तो ऑप्शंस देखते हैं ये इम्पॉर्टेंट क्यों है. तो इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत. It was an inscription that were found which mentioned the names of Vedic gods and goddesses. Option C है. Original texts of the Vedas were composed here. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. Inscriptions were found which mentioned the names of Vedic gods and goddesses. तो बोगस कोई एक इंस्क्रिप्शन है जिसपे गॉड्स के नेम इंस्क्रिप्ट किए हुए हैं. तो 4 वैदिक गॉड्स हैं, इंद्र, वरुणा, मित्र एंड नसत्य. Which of the following inscription tells about the Aryan movement of Aryan from Iran to India? तो बोगस कोई ही बताता है ये. Next, an inscription of 14th century BC which describes the Vedic gods has been found in Ekbatana, बोगस कोई और बेबीलोन और बाइसोटन. तो ये बोगस कोई इंस्क्रिप्शन में है. नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग रोट ऑन द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस? तो ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यन के बारे में किसने लिखा है? शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, विवेकानंद ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो इनमें से बाल गंगाधर तिलक ने अपनी एक थ्योरी दी है among many historians. तो बाल गंगाधर तिलक in his book The Arctic Home in the Vedas propound the theory that North Pole, the Arctic region, was the original home of Aryans, but this theory of Tilak is not acceptable to historians. Next, the name of scripture in which Purusha Medha was mentioned is, तो पुरुष मेधा किस स्क्रिप्चर में मेंशन है?
तो कृष्ण यजुर्वेदा, शुक्ल यजुर्वेदा, शतपथ ब्राह्मणा, पंचविशा ब्राह्मणा। तो पुरुष मेधा हैज बीन मेंशनड इन शतपथ ब्राह्मणा ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा। तो इसमें शुक्ल यजुर्वेदा भी है और शतपथ ब्राह्मणा भी है, इसीलिए यहाँ पे स्टार दिया गया है। इनमें से अगर एक ऑप्शन होता तो या तो शुक्ल यजुर्वेदा चूज किया जाता या फिर ये शतपथ ब्राह्मणा। तो शुक्ल यजुर्वेदा में शतपथ ब्राह्मणा आता है। तो ये जो पुरुष मेधा है ये तैत्रीय ब्राह्मणा में भी मेंशन है, जो कि कृष्ण यजुर्वेदा का पार्ट है। नेक्स्ट, द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद किंग Videgha Madhav referred in Shatpat Brahmana was ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र और ऋषि गौतम रहुगना। तो किंग विदेघा माधवा के प्रीस्ट थे ऋषि गौतम रहुगना। It is believed that Saraswati was the scene of the activities of the famous Vedic tribes, the Bharata, the Purus, and the Kurus. The Shatpat Brahmana narrates the story of King Videgha Madhav, a king of Videha, accompanied by his priest Rishi Gautama Rahugana, carrying the sacred fire to east, preserving thereby the tradition that the Kosala and the Videhas received from the culture. Next, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। In the post-Vedic period, which was considered as the axis of Aryan culture, तो आर्यन कल्चर का एक्सिस है अंग मगध, कोसल विदेहा, कुरु पांचाला और मत्स्य शूरसेना। तो इसका ऑप्शन सी है आंसर। कुरु एंड पांचाला is considered to be axis of Aryan culture. So in the post-Vedic period, this region of Kuru, Panchala, was considered as the axis of Aryan culture because here great achievements happened in science, mathematics, astronomy, religion and philosophy. Next, the word Gotra occurs for the first time in अथर्ववेदा, ऋग्वेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा। तो ये सब ऋग्वेदा में ही मेंशन था गोत्र वर्णा। एज अ ऋग्वेदिक टर्म गोत्र सिंपली मीन्स काउ शेल्टर और हर्ड ऑफ काउज। द स्पेसिफिक मीनिंग फैमिली, lineage, kin, as it were herd within an enclosure, is relatively more recent, first recorded around post Vedic period. तो गोत्र मतलब काउ पेन या फिर काउ शेल्टर, हर्ड ऑफ काउज, जहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक गांव की, छोटे से गांव की काउज बंधी होती थी, वो काउ शेल्टर है। तो एक काउ शेल्टर जिस एरिया का होता था वो सभी लोग एक ही गोत्र के होते थे। नेक्स्ट, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरीली ऑफ भक्ति, image worship and yajanas, worship of nature and yajanas, worship of nature and bhakti। तो worship of nature and yajanas। तो religion of early Vedic Aryan प्राइमरीली इसी पे बेस्ड था, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास। तो यज्ञ किया करते थे और नेचर की पूजा किया करते थे। सो द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज मेनली रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ द नेचर एंड परफॉर्मिंग ऑफ यजनास। The Aryans in early Vedic period describes life as manifestation of nature. So worship of different forces of nature formed a part of their religious belief. They believed that some divine power works behind the objects of nature such as fire, water and wind. Next, in the Rig Vedic period, people believed mainly in idol worship, one god belief, goddess worship और sacrificial and ritual processes। तो sacrifice and rituals को ज़्यादा मान्यता देते थे ऋग्वेदिक पीरियड के लोग। आइडल वर्शिप नहीं होती थी और वन गॉड नहीं थे, कई सारे गॉड्स को मानते थे, जैसे कि मेंशन भी है ऋग्वेदा में सोम, बृहस्पति एंड ऑल।
तो ऑप्शन डी वुड बी आंसर. 51st है, famous battle of 10 kings was fought on the bank of the river of Parushini. तो जो 10 kings थे, there is an ancient story mentioned in the Rig Veda called the Das Rajana, मतलब 10 kings on the bank of Parushini river. There lived a descendant of India's eponymous king Bharata named Sudas. तो भारत एक क्लैन थी, उसका किंग था सुदास. द ग्रेटर अचीवमेंट ऑफ सुदास वॉज हिज थम्पिंग विक्ट्री ओवर अ confederacy of 10 kings. So he won over 10 kings. The famous battle of 10 kings as described in the Rig Veda was fought on the bank of Parushini. Which among the following river among the referred as Matitama, Devitama and Naditama in the Rig Veda? तो ये है सरस्वती रिवर, द sacred river. Next, give the name of the tribe which is not related to the Panchajana of the Rig Veda Aryans. तो पंचजना वो 10 किंग्स में से 10 राजना वाले 10 किंग्स जो थे, उनमें से 5 किंग्स को पंचजना कहते हैं. ये 5 किंग्स किकत ट्राइब से रिलेटेड है. आई मीन सॉरी, किकट ट्राइब से रिलेटेड नहीं है. इन पांचों में से यदु, पुरु एंड तुर्वासा, इन तीनों से रिलेटेड थे ये पंचजना आर्यंस. तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है नॉट रिलेटेड टू पंचजना. तो पंचजना suggested 5 specific tribes whose eponymous ancestors were the founders of the clans, namely Yadu, Turvasa, Druhya, Anu and Puru. Kikat was not among them. In the ancient period, a chief livelihood source of the Aryans तो agriculture था. In ancient time, Aryans were dependent on agriculture and hunting for their livelihood. तो word यवा mentioned in Rig Veda is used for which agricultural product? तो यवा बार्ले से रिलेटेड है, बार्ले को बोलते हैं यवा. The यवा mentioned in Rig Veda is used for the food grain barley. Now onward we'll discuss in our next video. So that is all for today.